Yes. So in the last class, we were talking about some example questions, and today we are moving towards something which is actually related to the graphs, right? So this topic is, you can say that it is a lot of connection with the graphs over here. So we need to know about each and every graph about this topic, because वो graph से भी आप order of reaction find out करने के लिए कह सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देकर भी आपको कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करें। तो बहुत सारी चीजें ग्राफ से कनेक्टेड हैं इस चैप्टर की। So that is why this topic is also very important. We need to discuss some graphs of this chapter in today's lecture, right? So let's start with the first one. You can see this. If you talk about the graphs, so as we know that, for example, we are talking about the reactant A. ठीक है ना, कोई A reactant है हमारे पास, ऐसी कोई भी reactant में ले रहा हूँ. For example, if you have reactant A, so we know that rate is directly proportional to the concentration of A. And for suppose the A is zero order reactant. If the A is zero order reactant, so we know that the rate is independent of the change in concentration of A. आप जितना change कर लो concentrations को A की, there is no need to do this, because there is no effect on the rate. ठीक है, rate के ऊपर कोई effect ही नहीं है A का, क्योंकि A है zero order. ठीक है ना, तो जब आप जीरो ऑर्डर वाले किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हो तो बच्चों द रेट विल बी कांस्टेंट. इज दैट राइट? ग्राफ सही है ना, सही बात बता रहा है ये. इफ यू आर चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेट. इज दैट राइट और नॉट? Yes, sir. Then if you talk about the first order reactant, we know that for suppose A is first order reactant, तो आप उसको अगर डबल करते हो, A की concentration को डबल करते हो, the rate is going to be double. If you are going to triple the concentration of A, then the rate is going to be triple. If you are going to increase the concentration of A 4 times, then the rate will be 4 times. Or if you are going to halve the concentration of A, then the rate will be half. So we know that there is a direct connection of the concentration of first order reactant with the rate. तो जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना रेट बढ़ता जाएगा, जितना आप कम करते जाएंगे उतना रेट कम होता जाएगा. That is why the rate is directly proportional to the concentration of A. So we will have what? Positive gradient over here. So you can see this, that the rate is directly proportional to the concentration of A. आप उसको जितना बढ़ाएंगे रेट उतना बढ़ता जाएगा. तो उसका ये ग्राफ बनना चाहिए. Is that fine or not? Yes, sir. Then if you talk about the second order reactant बच्चों, सेकेंड ऑर्डर रिएक्टेंट में क्या होता है, आप जो है किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हो, अगर वो सेकेंड ऑर्डर है तो एक्सपोनेंशियली यानी स्क्वायर ऑफ द रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल गोइंग टू बी इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. आपके पास स्क्वायर होता जाएगा. अगर आपने डबल किया है तो आपके पास स्क्वायर क्या होगा, यानी कि रेट आपका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा. अगर आपने थ्राइस किया है तो रेट आपका 9 टाइम्स बढ़ जाएगा. अगर आपने हाफ किया है तो रेट आपका 1/4 टाइम्स लेसर हो जाएगा. ठीक है ना. So it is actually the direct proportion, but to the square of that change or that factor, right? So that is why the graph थोड़ा सा आगे की तरफ घूमता हुआ जाएगा. Is that right, बच्चों? Yes, sir. Now you can see this over here. We have no effect on the rate, but over here the gradient is positive, and over here we can see this, the gradient is going to be increased, right? Now let's talk about this reaction. If you remember in O levels we did that. This is the reaction which is connected with the O levels part, right? So for example यहाँ पर आप कोई reaction डाल रहे हैं. For example आप HCl का reaction सोडियम कार्बोनेट से करा रहे हैं. So we know that salt बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा. So this carbon dioxide is going to collect over there. So by and by यहाँ पर collection बढ़ती जा रही है. With respect to time we should have stopwatch over here as well. हमारे पास stopwatch भी होनी चाहिए. And with respect to time we are going to plot this graph. So you can see this, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास concentration बढ़ती गई, volume बढ़ता गया, और एक वक्त आया जब reaction खत्म हो गया तो आपके पास ये horizontal हो गया, straight हो गया. This is showing that यहाँ पर reaction खत्म हो गया, 40 सेकंड बाद reaction खत्म हो गया. ठीक है, और मैक्सिमम वॉल्यूम जो आपने कलेक्ट किया वो आपने कलेक्ट किया 50
centimeter cube carbon dioxide. ठीक है ना? So you can even find out the moles of this. You can find out the moles by we know that gas का volume अगर centimeter cube में given हो, so you can divide it by 24,000 to get the number of moles. So you can even find out the moles as well of any gas by this formula, right? You can even find out the time, and you can even find out the rate over here if you want to find rate. So first आप देख लें कि 5 सेकंड के अंदर आपके पास ये था मामला, सेकंड 5 सेकंड में आपके पास ये था, फिर आपके पास ये मामला था 5 सेकंड में। तो ये इस तरह आप रेट निकाल सकते हैं 5 सेकंड के हिसाब से। यू विल सी दैट कि आपके पास जो भी चेंज आया होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी द रेट। तो अगर आप यहाँ देखें फर्स्ट वाले रेट की अगर हम बात करें, तो दिस इज एक्चुअली समवेयर 17 centimeter cube over 5 seconds. You can find out the rate of this if we divide this. So what will be the rate of reaction? What is the first rate बच्चों? कितना आएगा if we divide this? 17 divided by 5, क्या आंसर आएगा हमारे पास? 17 divided by 5, we will have 3.4. तो हमारा rate of reaction 3.4 है, first one. फिर अगर आप second one निकालो, तो second one में आप देखें, second one में आपके पास rate of reaction कितना हो गया आपके पास? It is almost 30 minus 17, so it will be 30 minus 17, it will be 13 over 5. So if we divide 13 divided by 5, it will give you what? 2.6. ये आ गया आपके पास सेकंड रेट। अगर आप बात करें थर्ड वन की, तो आप देखें थर्ड वन में आपके पास ये ऑलमोस्ट समवेयर 37 38 आ रहा है। So it is 38 minus 30, you will have 8 over 5. 8 over 5 आपके पास कितना आ जाएगा? 8 over 5, it is 1.6. Right, same as it is. अगर आप इसको देखें तो it is somewhere 42 or 43, so it should be 5 over 5, so it will be 1, right? And then ये हो गया आपके पास, ये और कम हो गया, ये और कम हो गया. You can see this that the rate with respect to time is decreasing over here. If you focus over there, so rate जो है वक्त के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके पास रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस बाय एंड बाय क्या हो रही हैं? कंज्यूम हो रही हैं, खर्च हो रही हैं। जब रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा. यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस if you want to calculate the rate. So the highest rate should be in the start always. हमेशा rate of reaction fastest शुरू में होता है. You need to keep remember this. शुरू वाला जो रेट होगा वो फास्टेस्ट होगा, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होंगे, तो इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंट कोलिजन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगी. द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन द स्टार्ट. ठीक है ना? फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन आपकी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? कम हो रही है. सो यू कैन सी दिस, कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आहिस्ता 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 विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है. ठीक है ना? इसी तरह आपके पास इसका रेट भी आहिस्ता 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 क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा. पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था. इस तरह आपके पास क्या बन जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का भी आप बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप रेट ऑफ इसका बनाना चाहें इसका बना लें, या अगर आप इसको प्रोडक्ट के साथ बनाना चाहते हैं आप प्रोडक्ट के साथ भी बना सकते हैं. जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी तो रेट ज्यादा था, देख सकते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कम रेट और कम, concentration come, rate come, concentration come, rate come. So this is what this is showing you. It is directly proportional to each other. So it should be first order reaction. ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमेशा क्या होगा? आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाएगी रेट आपके पास कम होता जाएगा, या अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा. इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. So you must need to draw the graph of concentration with respect to time along with the rate with respect to concentration. ये दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास बना लें या इसके आप पिक्चर ले लें. Sir, picture ले लिया. चलें ठीक, आगे चलते हैं फिर. If you move towards this example, you can take this take the snapshot of this, right? You can solve this later on.
आप इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस तरह ग्राफ कनेक्टेड है, रेट कनेक्टेड है, किस तरह आप निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप इसकी जब तस्वीर ले लें बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, इसको पिक्चर में ही सॉल्व कीजिएगा। प्रिंट आउट निकालेंगे तो डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ा बहुत, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप इस वजह से। Sir, ठीक है, done. ओके, थैंक यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स समथिंग different. For example, if you talk about zero order, bacho, so we know that there is no effect of the concentration of A on the rate. So that is why the rate is always constant. So if you change the concentration of any reactant, it will remain same. The rate will remain same. So if you talk about the rate with respect to time, again, it will be same. The thing you need to understand is this: concentration reactant की with respect to time कम हो रही है, लेकिन इस concentration के कम होने की वजह से there is no effect on the rate. Right बच्चों, दोनों अलग अलग ग्राफ हैं, you need to keep remember this कि जीरो ऑर्डर में जो आपका रिएक्टेंट होगा डेफिनेटली इट विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा होगा, लेकिन उसका ऑर्डर क्योंकि जीरो है तो वो रेट पे कोई असर नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। उसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बनेगी डेफिनेटली, लेकिन उसके उसके बगैर रिएक्शन फास्ट या स्लो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जीरो ऑर्डर जो रिएक्टेंट होते हैं ना वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट तो होते हैं, उनके बगैर प्रोडक्ट नहीं बनेगी, लेकिन उनका रेट पे कोई असर नहीं होता, ठीक है बच्चों। दैट इज Yes, वाई sir. आपके पास रिएक्टेंट यूज तो हो रहा है, रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, टाइम के हिसाब से उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, बट उसका रेट पे कोई असर नहीं है। दैट इज वाई दीज टू ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर इस तरह का कोई ग्राफ आपको नजर आए क्वेश्चन में तो आप समझ जाएंगे कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो रिएक्टेंट है, ये जो है आपके पास क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट है, तो आपको एक्सप्रेशन बनाने में आसानी होगी, ठीक है। देन दिस इज कनेक्टेड विद सेकंड ऑर्डर। इफ टॉक अबाउट सेकंड ऑर्डर, वी नो दैट कॉन्सेंट्रेशन और रेट का इस तरह का ग्राफ हमने भी पढ़ा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की अगर आप बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेंट्रेशन रेट की भी और कॉन्सेंट्रेशन आपके पास रिएक्टेंट्स की आहिस्ता आहिस्ता कम होगी डेफिनेटली, और वो इसी तरह कम होगी, ठीक है। बट द ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, सो इट कैन कॉज प्रॉब्लम फॉर यू। सो यू कैन सी दिस ग्राफ ओवर हेयर, जो ग्राफ ऊपर से जा रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर है, और जो बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा डेप्थ में होके जाएगा वो आपके पास सेकंड ऑर्डर होगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ concentration वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो थोड़ा ऊपर से होके निकल जाएगा वो फर्स्ट ऑर्डर, और थोड़ा डेप्थ में होके जाएगा वो आपके पास सेकंड ऑर्डर होगा। ये ऑल द टाइम आपको कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए एक चीज यूज होती है जिसका नाम है हाफ लाइफ। एक चीज यूज होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन में कंफर्मेशन देने के लिए, वो यूज होती है हाफ लाइफ। एंड व्हाट इज हाफ लाइफ? Half life is actually something, you can say that the time duration in which the reactant is going to be half, ठीक है ना। This is actually what, this is the time period in which the reactant you start with the reaction। आपने जिस जिस रिएक्शन के साथ स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल 8 ग्राम से स्टार्ट किया था, अब वो 8 ग्राम से 4 ग्राम जब तक नहीं हो जाता, तो 8 से 4 होने में जो टाइम स्पेंड हुआ उस टाइम पीरियड को, उस टाइम यूनिट को हम हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है ना। आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट यूज किया है, वो जब तक 50 नहीं हो जाएगा वो फर्स्ट हाफ लाइफ नहीं कहलाएगी। फिर 50 से 25 सेकंड हाफ लाइफ हो जाएगी, और 25 से 12.5 थर्ड हाफ लाइफ, 12.5 से 6.25 आपकी फोर्थ हाफ लाइफ। इस तरह जब जब वो आधा होगा, जब जब उसकी हाफ लाइफ काउंट होगी। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. Now you can see this if you talk about the half life graphs, so we know that जीरो ऑर्डर तो सीधा सीधा है, तो जीरो ऑर्डर में तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो हाफ लाइफ है वो आपके पास क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास हाफ लाइफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहली हाफ लाइफ थी उसको टाइम ज्यादा लगा, फिर कम हो गई, फिर और कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यू कैन से दैट डिक्रीजिंग हाफ लाइफ, दैट्स प्रीटी सिंपल, सीधा सीधा ग्राफ है। मसला आता है फर्स्ट ऑर्डर में और सेकंड ऑर्डर में, थोड़े से मिलते जुलते ग्राफ हैं, तो यहाँ हाफ लाइफ में फायदा होता है हमें। जब आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड एक्यूरेटली, देयर शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर हाफ लाइफ। अभी इजिकल्स तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स, देयर आर सम एरर्स, देयर आर सम इश्यूज इन द प्रैक्टिकल। तो यू कैन से दैट कि थोड़ा बहुत चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर एक आंसर आ गया, फर्स्ट हाफ लाइफ आ गई,
16.7, दूसरी वाली अगर 17.2 आ जाएगी तो वी कंसीडर दिस कि यार ये करीब करीब है, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है ना, हम इतने ज्यादा रिजिड नहीं हो जाएंगे कि 17 ही चाहिए हमें हर हाल में, थोड़ा बहुत आगे भी चलेगा, हम राउंड फिगर करके उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जब आपके पास हाफ लाइफ ऑलमोस्ट इक्वल होंगी, वो आपके पास क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट कहलाएगा। वो आपके पास क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट कहलाएगा। और जब हाफ लाइफ आहिस्ता आहिस्ता आपके पास इंक्रीज हो रही होगी, मतलब कि पहला वाला जो आपके पास आधा हुआ, वो जो है आधा होने में उसने टाइम कम लिया, और दूसरा वाला जब आधा हो रहा है तो उसने टाइम ज्यादा लिया। तो इस तरह के आप रिएक्शन को देख के पहचान जाएंगे, इस तरह के ग्राफ को देखकर आप पहचान जाएंगे कि ये आपके पास सेकंड ऑर्डर वाला ग्राफ है। So just look at over here on the diagram. I just want you guys to solve this structure और मुझे जरा बताएं कि ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है। जस्ट ट्राई करें इसको। I'm just stopping the recording for a while. You can so we can say that okay, they are of first order. You can say that मैंने नीचे लिखा हुआ है अलग से, these are experimental data, there might be some variation in value, so you need to keep remember this कि थोड़ा बहुत आगे पीछे वैल्यू चलेगी ग्राफिक। प्रैक्टिकली जब आप कोई चीज करते हैं there may be some issues, right? So let's talk about some rate equations now. This is one of the most important thing in our chapter and it is, you can say that ये बहुत मजे की चीज है और ये बहुत आगे की चीज है। मतलब कि आपको पता चलने वाला है कि रिएक्शन वन स्टेप है या टू स्टेप है, ये डायरेक्ट हुआ है या दो स्टेप में टूट कर हुआ है, पहले कुछ और बना है या नहीं बना है। तो ये बहुत मजे की चीज है। ठीक है, चलें जरा देखते हैं। आपने जो पहले पढ़ा था, आपने पढ़ा था एएस में, आपने क्या पढ़ा था एएस में, आपने पढ़ा था एएस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे आपने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे आपने। उस रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था बच्चों, उस रिएक्शन में आपने ये पढ़ा था कि आपके पास अगर कोई हेलोजिनो अल्केन हो, कोई हेलोजिनो अल्केन आपके पास हो, वो प्राइमरी भी हो सकता है आपके पास, वी नो दैट प्राइमरी हेलोजिनो अल्केन हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिले तो आपके पास क्या बनता है, CH3OH और Br, और इसको हम बोलते थे क्या, इट इज SN2 मैकेनिज्म। और अगर कोई टर्शरी हैलोजिनो अल्केन हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता था तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल बनता था, और इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे SN1 मैकेनिज्म। इसको हमने क्या नाम दिया था, इट इज SN1 मैकेनिज्म। ये क्या सीन था, हमने इसको SN1 और SN2 क्यों कहा था, नाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस इन टुडेस क्लास, राइट? Just look at over here. If you talk about the mechanism of SN1, so this was the mechanism. If you remember, कि आपके पास जो कार्बन होता था वो कार्बन कार्बो पॉजिटिव बन जाता था बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड ब्रोमीन। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाता था, उसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा ब्रोमीन खींच लेता था, इस वजह से वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का सीन यहाँ पर जनरेट हो जाता था। ठीक है, होता क्या था आपके पास कि आपके पास अगर 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 ये आपके पास कौन सा है, ये वो वाला है जिसमें आपके पास हाइड्रोक्साइड अटैक कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कहीं ना कहीं से अटैक करता, ये हाइड्रोक्साइड है, इसके पास लोन पेयर है, ये नेगेटिव है, तो हाइड्रोक्साइड इस पे क्या करता, इस पे अटैक करता। जब ये अटैक करता तो क्या होता आपके पास, ये कार्बो पॉजिटिव बन जाता और यहाँ से जो ब्रोमीन या क्लोरीन था वो आयन बन के बाहर निकल जाता, और फिर अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पर ये एडजस्टमेंट होती थी। ये SN2 और SN1 में अलग अलग मैकेनिज्म थे, अगर आपको याद हो तो मैं इसको यहाँ लिखकर दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज थी, कार्बन और ब्रोमीन, इस तरह की कोई चीज थी, ठीक है ना, यहाँ एक कार्बन की चेन फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना, और ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, दिस इज व्हाट प्राइमरी हैलोजन अल्केन। तो यहाँ पर क्या होता, हाइड्रोक्साइड के पास लोन पेयर है, वो इस पे अटैक करता और अटैक करने के बाद ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देता, और यहाँ पर क्या होता आपके पास, यहाँ पर आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, हाँ, ब्रोमीन और हाइड्रोक्साइड H H और CH3, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है, ये बनती थी। उसके बाद अगले स्टेप में ये खुद ब खुद ही ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाता था आपके पास, अल्कोहल बन जाता था। That's what
SN1 रिएक्शन, हम इसको क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे SN1 रिएक्शन, क्योंकि ये वन स्टेप रिएक्शन था, सिंगल स्टेप रिएक्शन था। और सिंगल स्टेप, इसको SN2 बोलते थे क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन था। इस सिंगल स्टेप रिएक्शन में ये वाला जो एक पूरा प्रोसेस है, ये जो बीच वाली हिस्सा है, ये ना होने के काबिल, मतलब ये हो ही नहीं सकता ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बन ही नहीं सकता, कोई कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन ही नहीं सकते ना, तो ये ट्रांजिशन स्टेट कहला रही थी। अरे हमने आपको दिखाने के लिए किया था कि कुछ इस तरह का होता होगा, लेकिन ये स्टेप होता नहीं बीच में, ये एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकती है ना चीज। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन था। तो ये पूरे रिएक्शन में आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा था इसी 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 इक्वेशन पर। जो इक्वेशन आपके सामने है, इसी पूरी इक्वेशन पे आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था। तो वी नो दैट व्हाट इज रेट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओवर हियर हेलोजिनो अल्केन जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बगैर रिएक्शन नहीं होगा। और क्योंकि हाइड्रोक्साइड यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोक्साइड इस पर अटैक कर रहा है। जब तक हाइड्रोक्साइड अटैक नहीं करेगा रिएक्शन होगा नहीं, हाइड्रोक्साइड अटैक कर रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दोनों ही यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर थे और 1+1 ये पूरा रिएक्शन आपके पास टोटल सेकंड ऑर्डर रिएक्टेंट था। ये टोटल सेकंड ऑर्डर रिएक्टेंट था, इस वजह से हम इसको बोल रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2। दैट इज व्हाई वी वर यूजिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 ओवर देयर। और अगर आप सेकंड वाले की बात करें तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये रिएक्शन था कि आपके पास कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड एक तो ऑलरेडी पोलराइज है, और यहाँ कार्बन के पास ऑलरेडी 3 मिथाइल लगे हुए हैं, और मिथाइल वी नो दैट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे होते हैं, ये बॉन्ड खुद ब खुद टूट जाता है। जब ये बॉन्ड खुद ब खुद टूटता है तो कार्बन पॉजिटिव, क्योंकि एक स्टेबल कैटाइन है तो ये यहाँ रह सकता है, ठीक है, इस तरह। फिर अगले स्टेप में क्या होता था, हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ सिर्फ क्या होता था, अट्रैक्ट होता था। यहाँ क्या होता था, अट्रैक्ट होता था, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाता था, आपके पास बन जाता था अल्कोहल। सही है, ये आपके पास प्रोडक्ट इसमें बन रहा था। नाउ इन दिस रिएक्शन वी नो दैट अट्रैक्शन इज वेरी फास्ट। अट्रैक्शन एक फास्ट अमल है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट आराम से कर लेते हैं, एंड इट इज अ स्लो स्टेप, राइट। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट द स्लो स्टेप्स आर ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। स्लो steps are always rate determining step. You need to keep remember that slow steps are always rate determining step. तो ये वाला जो इक्वेशन वाला स्टेप है ये रेट डिटरमाइनिंग है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हैलोजिनो अल्केन आ रहा है। इस वजह से इसकी ओवरऑल इक्वेशन डिपेंड करेगी सिर्फ किस पर, रेट ओवरऑल डिपेंड करेगा किसके ऊपर भाई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ this. So that is why this is first order reaction and it is known as SN1 mechanism. क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड का कोई काम ही नहीं। हाइड्रोक्साइड इसमें सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो नेगेटिव है और वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, खाली सिर्फ वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इसमें मानने नहीं रखती, इसलिए वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इज दैट राइट बच्चों? ये पुरानी बात है सिर्फ। सर मैकेनिज्म वगैरह तो याद है, लेकिन हमें इससे ये कैसे पता लगा कि ये जीरो ऑर्डर है SN1 और SN2 जो है वो सेकंड ऑर्डर है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि जो स्टेप स्लो स्टेप होता है ना, स्लो स्टेप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो फर्स्ट वाला जो आपके पास स्टेप है ना, जिसके अंदर वो खुद ब खुद टूट रहा है, टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन जो है आपके पास खुद ब खुद ब्रेक डाउन हो रहा है क्योंकि उसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, वो स्टेप स्लो है। जब वो पॉजिटिव आइन बना लेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अट्रैक्शन है वो डेफिनेटली फास्ट होगी। तो जो फास्ट वाला है वो रेट डिटरमाइनिंग के लिए स्टेप इस्तेमाल नहीं होता, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो वाला स्टेप होता है। तो जो टूट रहा है वो आपके पास क्या है, टूटने वाला जो स्टेप है वो स्लो स्टेप है ना, तो स्लो स्टेप से रेट डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर के अंदर या आपकी किसी फैक्ट्री के अंदर आप फॉर एग्जांपल एक ऐसी जॉब करती हैं जिसके अंदर आपका जो है ओवन यूज होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने एक अपने घर के अंदर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है, और उस रेस्टोरेंट के अंदर आप फॉर एग्जांपल कुकिंग करती हैं, उस कुकिंग के अंदर आप ओवन यूज करती हैं। आप प्याज काटेंगी, इट विल नॉट टेक टाइम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा बना रहे हैं हम, एक पिज्जा जब हम बना रहे हैं तो उस पिज्जा को बनाते वक्त आपकी जो ब्रेड है उस पर जो केचप डाल रहे हैं आप उस पर चिकन डाल रहे हैं, आप दसियों काम उस पर कर रहे हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। सारा का सारा टाइम किसमें लगेगा, जब आप पूरा सब कुछ रेडी कर कर उसको बेक करने के लिए ओवन में रखेंगे।
ओवन में रखेंगे, 15-20 मिनट लगेंगे, तो सारा का सारा आपकी पूरा रेस्टोरेंट, आपका पूरा रेस्टोरेंट का हर एक ऑर्डर उस ओवन के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना जल्दी ओवन काम करेगा उतना जल्दी ओवरऑल आपका रेस्टोरेंट काम करेगा। अब आप जितने भी जल्दी आप 10 लोगों को खड़ा कर दें, 10 आप जो है ना पिज्जा रेडी कर दें, लेकिन वो 10 पिज्जा 100% रेडी तभी हो सकते हैं जब आपके पास 10 ओवन होंगे। 10 ओवन नहीं है, एक ही ओवन है, तो एक वक्त में आप एक ही पिज्जा बना सकती हैं। तो आपका पूरा रेट, आपका पूरी स्पीड, आपका पूरा ऑर्डर उस ओवन पे डिपेंड करे, विच इज अ स्लोअर वन। सो यू कैन से दैट कि आपके पास जो स्लोअर वन स्टेप्स होते हैं वो एक्चुअली आपके रेट को डिफाइन कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? सर रेट फिर हमें बताया हुआ होगा, इसके बाद हमें ऑर्डर पता लगेगा, या ऑर्डर का वो कंफर्म ही होता है हर उसमें? ये SN1 फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर होता है, SN2 फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकंड? SN1 और SN2 तो हमेशा फर्स्ट और सेकंड ही रहेंगे। बाकी जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो बगैर इन्फॉर्मेशन को तो आपको क्वेश्चन नहीं देंगे ना। डेफिनेटली आपको वो कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड करेंगे जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते होगे। अगर आपको कुछ भी प्रोवाइड ना करें तो वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? तो आपको कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करेंगे ना। या तो वो आपको रेट एक्सप्रेशन डिफाइन कर दे देंगे, रेट एक्सप्रेशन से आप मैकेनिज्म बना लें, या आपको मैकेनिज्म दे देंगे, आपसे रेट पूछ लेंगे, आपको बता देंगे ये वाला फलाना स्टेप स्लो है, उससे रेट इक्वेशन निकाल लें। ठीक है ना? अभी हम आगे चलेंगे तो देखते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी तो स्टार्ट किया। जस्ट लुक एट ओवर हियर, दिस इज एग्जांपल नंबर 16। जस्ट लुक एट ओवर हियर ऑन दिस एग्जांपल। क्या कह रहा है वो आपसे? इट इज सेइंग दैट a plus b फॉर्मिंग ab, राइट? a और b जब मिलते हैं तो क्या बनाता है? ab बनाता है, एंड c इज द कैटलिस्ट ओवर देयर। इज दैट राइट? And what in the end they are saying? They are saying that the rate expression is directly proportional to the concentration of A and C, and the rate equation is actually equal to the concentration of A and C. Is that right? उसने दिया ना आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन। अब आप देख सकते हो रेट इक्वेशन में कि आपके पास जो रेट इक्वेशन है ये किसके बराबर है? इट इज कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ A and C. दैट्स फाइन कि आपके पास रेट इक्वेशन में A है, दैट्स फाइन, इट इज वन ऑफ द रिएक्टेंट। you can see this कि आपके पास रेट इक्वेशन में C है, that's fine, it is one of the catalyst over here, that's fine, but where is B? B is also the reactant ना, तो कहाँ गया? गायब हो गया। जी सर। Now we need to make mechanism for this, right? तो हमें मैकेनिज्म कैसे बनाना पड़ेगा? हम मैकेनिज्म इस तरह बनाएंगे कि भाई आपके पास सबसे पहले क्या हुआ होगा? A रिएक्टेंट जो है वो मिला होगा किसके साथ? C के साथ। C is the catalyst. A C के साथ मिला होगा और इसने बनाया होगा क्या? इसने बनाया होगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ने जाकर B यानी कि सेकंड वाले कैटलिस्ट, सेकंड वाले रिएक्टेंट से रिएक्शन किया होगा और आपके पास बनी होगी प्रोडक्ट विच इज AB, और आपके पास कैटलिस्ट बाहर आ गया होगा। ठीक है, ये शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। और इसमें मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला स्टेप है ये स्लो स्टेप हुआ होगा और सेकंड वाला फास्ट हुआ होगा। दैट इज व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप। तो रेट हो गया आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड C, राइट? तो इससे हमें ये बात पता चली कि जो स्टेप स्लो होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग होते हैं, तो जो रिएक्टेंट स्लो स्टेप में नहीं होते वो जीरो ऑर्डर होते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। This is the thing that you need to understand in the mechanism. Clear है? सर जो रिएक्टेंट में नहीं जो रेट इक्वेशन में नहीं होंगे वो जीरो जीरो ऑर्डर होंगे, और बाकी तो वो हम रेट से पता लगाएंगे। Yes, जो जो रेट इक्वेशन में नहीं होंगे वो जीरो ऑर्डर होंगे। और सेकेंडली यू कैन से दैट दे शुड बी द पार्ट ऑफ द फास्ट स्टेप, राइट? यानी कि वो यूज तो हो रहे हैं, यूटिलाइज तो हो रहे हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ द फास्ट steps, right? And one more thing you need to keep remember over here also is this कि जो चीज रिएक्शन में बने और बनकर खत्म हो जाए, जो चीज रिएक्शन में बने और बनकर खत्म हो जाए उसको आप बोलते हैं उसको आप बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं आप उसको? इंटरमीडिएट, राइट? एंड जो चीज आपके पास रिएक्शन में यूज हो और यूज होने के बाद एज इट इज विदड्रॉ हो जाए, जो आपके पास यूज हो और यूज होते ही एज इट इज विदड्रॉ हो जाए, उसको आप बोलते हो कैटलिस्ट, राइट बच्चों? तो इस तरह आप मैकेनिज्म से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हिच वन इज कैटलिस्ट एंड व्हिच वन इज इंटरमीडिएट, राइट? यस सर।
and the remaining one on the left hand sides are what reactants. तो ये हो गया reactant, ये हो गया reactant, and this will be the product. Right बच्चों? Yes sir. तो मैं मैकेनिज्म को देखकर भी इक्वेशन लिख सकता हूँ. वो क्या थी कि ए और बी मिले होंगे और प्रोडक्ट बनी होगी ए बी, और इसके अंदर हमने कैटलिस्ट यूज किया है सी. ठीक है भाई? जी सर. चलें, कैन यू ड्रॉ दिस वन? can you find out the rate of reaction of the example number 17? Find out the rate of the rate expression or rate equation for. जब आप मैकेनिज्म की बात करते हो ना बच्चों, तो देखो मैकेनिज्म डिपेंड करता है स्लोअर स्टेप पे ना. दैट्स वेरी सिंपल फॉर अस कि ये वाले इस वाली इक्वेशन पर आपके पास रेट डिफाइन है, इस पर डिपेंड कर रहा है. तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ x and we have 2x over there, so we can write 2 over here because ये slow step है. अब इसमें जो नंबर है ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि हमें पता है यहाँ 2x आपस में मिल रहे हैं. ठीक है? उसके अलावा आपके पास अगर 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 ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई. दूसरा वही कह रहे हैं, अगर आपके पास स्लो स्टेप ये वाला हो जाता, अगर सेकंड वाला स्टेप स्लो स्टेप हो जाता, तो व्हाट हैपन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ v and the concentration of y, right? And what is v? v is actually intermediate. You can see this कि v क्या है, आपके पास बना और खत्म हो गया, ये इंटरमीडिएट है. तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है? x पे. तो आपके पास बना रेट किसके बराबर? x की कॉन्सेंट्रेशन और y की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर. इज इट राइट बच्चों? Yes sir. चलें, so this is actually the end of almost this chapter, right? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके आगे की बातें करेंगे. और मेरे पास सर स्लाइड्स अभी रेडी नहीं है जी. अगर